Hello, welcome back. This is the practical session in which we will see how we will identify the slides of muscle. In the theory class, we have read about the characteristic features or how to identify skeletal muscle, cardiac muscle, smooth muscle. Now we will imply those characteristic features to identify the slides in practicals. Okay, so let's start. दिस इज द स्लाइड इन 4x मैग्निफिकेशन. ठीक है, 4x मैग्निफिकेशन में व्हाट वी सी कि टिश्यू कौन सा है. ठीक है, 4x मैग्निफिकेशन में देखने में हमें ये पता चल रहा है कि दिस इज द स्लाइड ऑफ अ मसल. अब नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल और स्मूथ मसल. ठीक है, फॉर दैट वी विल रिमेंबर ओनली 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. फर्स्ट, the muscle fibers, what is the direction of muscle fibers and whether branching is present or not. Second, nucleus, what is the position of the nucleus, what is the shape of the nucleus. And third, striations, whether it is present or not. ठीक है, so in 4x magnification हमें इतना दिख गया है कि ये मसल की स्लाइड है. Okay, now we will increase the magnification to see the characteristic features of muscle. इस स्लाइड में हमें क्या दिख रहा है? These are the longitudinal muscle fibers and these are the transverse section of muscle fibers. Okay, in tongue we have many intrinsic and extrinsic muscles. ठीक है, बहुत सारे बंडल्स होते हैं मसल फाइबर्स के टंग में, बिकॉज टंग हेल्प करती है स्पीच में. दैट इज वाई इट इज हैविंग 4 इंट्रिंसिक मसल्स एंड मेनी एक्सट्रिंसिक मसल्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक मसल है पूरी. ठीक है, द कवरिंग ऑफ दिस मसल विल बी एपीमाइसियम. ओके, देन दिस इज वन fasciculus. Then fasciculus is covered by perimysium, and inside the fasciculus there are different muscle fibers. Here you can see bundles of muscle fibers in this fasciculus and each muscle fiber will be covered by endomysium. ठीक है, so in the transverse section you have to see these 3 coverings, and in the longitudinal section you have to see the direction of muscle fibers, you have to see the position of the nucleus, and you have to see the striations. Okay, now in 10x magnification you will see the slide like this. Here you can see this is the longitudinal section of skeletal muscle and this is the transverse section of skeletal muscle. Longitudinal section में हमें क्या देखना है? मसल फाइबर्स. ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ मसल फाइबर्स. तो ये मसल फाइबर्स किस तरह से अरेंज्ड हैं? लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड हैं. ओके, ट्रांसफर सेक्शन में हमें क्या देखना है? दिस कवरिंग इज नोन एज पेरीमाइसियम. ओके, बिकॉज इट इज अ fasciculus in which individual muscle fiber is present which is covered by endomysium. ओके, तो हमें ट्रांसफर सेक्शन दिखाई दे रहा है, हमें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाई दे रहा है. अब हमें 40x मैग्निफिकेशन में देखना है कि न्यूक्लियस की पोजीशन क्या है और स्ट्राइशंस प्रेजेंट है या नहीं है. ओके, this is the 40x magnification view, and in the this is the de Furey's diagram of skeletal muscle in 40x magnification. Up in the upper side this is the longitudinal view and in the lower side this is the transverse section of skeletal muscle. ठीक है, तो हमें longitudinal section में इनमें क्या दिखाई दे रहे हैं? हमें striations देखने हैं, हमें nucleus की position देखनी है, that is placed peripherally and is flat. ठीक है, तो जो मसल फाइबर्स होते हैं ये हम यहाँ भी देख लेते हैं. लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट में मसल फाइबर्स किस तरह से अरेंज्ड हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अरेंजमेंट ऑफ मसल फाइबर्स, दे आर लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड एंड विदाउट ब्रांचिंग. सो दिस इज सजेस्टिव ऑफ स्केलेटल मसल. सेकेंड, वी विल सी द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस. हियर यू कैन सी द न्यूक्लियस आर प्लेस्ड पेरिफेरली. ये हमें दिखाई दे रहे हैं कि पेरिफेरल न्यूक्लियस प्रेजेंट है. ठीक है, इट मीन्स दिस इज अगेन सजेस्टिव ऑफ स्केलेटल मसल. ओके, एंड थर्ड, द स्ट्राइशंस. इफ यू सी क्लियरली, ठीक है, बहुत आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे स्ट्राइशंस दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, इन ईच मसल फाइबर. ओके, सो अगेन दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ स्केलेटल मसल. ओके, सो वी हैव आइडेंटिफाइड दैट दिस इज द सेक्शन ऑफ स्केलेटल मसल. हम ट्रांसफर सेक्शन की बात करें तो हमें ट्रांसफर सेक्शन में क्या क्या देखना है? ये इंडिविजुअल मसल फाइबर है. द कवरिंग ऑफ दिस विल बी एंडोमाइसियम एंड पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस, ये हमें पेरिफेरी में न्यूक्लियस अरेंज दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, सो
This is again suggestive of skeletal muscle, and this whole fasciculus is covered by पेरीमाइसियम. ये हमें यहाँ पे ये कनेक्टिव टिश्यू दिखाई दे रहा है. दिस इज नोन एज पेरीमाइसियम. ओके, सो वी हैव seen that this is the slide of skeletal muscle. Okay, now we will move on to the smooth muscle. In 4x magnification, smooth muscle will look like this. ठीक है, इसमें जैसे GIT की जो स्लाइड्स होती हैं उसमें क्या होता है, स्मूथ मसल अरेंज्ड होती है 2 लेयर्स में. ठीक है, दिस इज द सर्कुलर मसल लेयर एंड दिस वन इज द लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर. सर्कुलर मसल लेयर हम बोलते हैं और उसका अरेंजमेंट क्या होता है उसमें स्मूथ मसल फाइबर्स का, दे आर लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड. वाइल इन द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स किस तरह से अरेंज्ड होते हैं, ट्रांसवर्सली अरेंज्ड होते हैं. ठीक है, सो दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन बट इट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल लेयर. और ये क्या है, longitudinal section, this is known as the circular layer. Okay, so 4x magnification में हमें इतना दिखाई दे रहा है कि मसल की स्लाइड है. ओके, हमें कुछ longitudinal पैटर्न दिख रहा है, कुछ ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाई दे रहा है. Now in 10x magnification you can see this is the slide of डी फ्यूरीज. ठीक है, डी फ्यूरीज में हमें इस तरह से डायग्राम दिखा हुआ है. In the upper part it is the longitudinal section, in the lower part this is the transverse section of smooth muscle. Here you will also see in between the circular and longitudinal layer, here some are the nerve plexuses. These are known as orbex plexus or we can say myntric plexus. ठीक है, जो सर्कुलर इनर सर्कुलर होती है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर होती है, इनके बीच में कुछ नर्व प्लेक्ससेस प्रेजेंट होते हैं, दैट आर नोन एज ऑर्बेक्स प्लेक्सस या माइंट्रिक प्लेक्सस हम उनको बोलते हैं. ठीक है, तो अब हम हमारी स्लाइड जो है इसमें भी देख लेंगे दीज द लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट. ये सर्कुलर मसल फाइबर्स हैं, लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड हैं. ठीक है, देन हमें फ्लैट न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है. न्यूक्लियस की पोजीशन आप देख सकते हैं, फ्लैट न्यूक्लियस हैं और मल्टीपल न्यूक्लियस हैं. न्यूक्लियस आर स्टेन्ड पर्पल. ठीक है, जो पिंकिश है दैट इज द साइटोप्लाज्म ऑफ स्पिंडल शेप, और जो थोड़ा सा डार्कली स्टेन्ड है दीज आर द मल्टीपल न्यूक्लियस. ठीक है, एंड इन बिटवीन द सर्कुलर एंड द लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, दीज आर द माइंट्रिक नर्व प्लेक्सस. ओके, नाउ थर्ड वी शुड सी द स्ट्राइशंस. फॉर दैट वी विल इंक्रीज द मैग्निफिकेशन टू 40x. ओके, नाउ इन 40x magnification, in the diagram of D Fury you can again see upper part is the longitudinal muscle layer, lower part is the transverse section. ठीक है, तो upper part को हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मसल लेयर है, लोअर पार्ट कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर है. ठीक है, इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, हमें न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है 40x में. पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस फ्लैट है एंड इट इज सेंट्रली प्लेस्ड, है ना, और ये स्पिंडल शेप के हमें मसल फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं. एंड इन द ट्रांसवर्स सेक्शन यू कैन सी सम न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द मसल फाइबर्स. ठीक है, ये हमें मसल फाइबर्स के सेंटर में न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं और ये कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग दिखाई दे रही है. ये एक फेसिकुलस है तो उसकी कवरिंग क्या होगी, पेरीमाइसियम. ओके, हियर इन आवर स्लाइड वी कैन सी दैट दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन. ठीक है, ये पूरा हमें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिख रहा है, इसमें ट्रांसवर्स सेक्शन प्रेजेंट नहीं है. लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हमें यहाँ पे इस तरह से मसल फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं 40x में. ठीक है, these are the spindle shaped muscle fibers. Here you can again see these are the spindle shaped muscle fibers and the nucleus are arranged in the center. Okay, you can see these are the flat nucleus. सेल बाउंड्रीज आपको बहुत अच्छे से विजिबल नहीं होंगी, हमें न्यूक्लियस विजिबल है कि फ्लैट न्यूक्लियस है और बहुत क्लोजली अप्रोक्सीमेशन है. तो ये किसकी स्लाइड होगी, स्मूथ मसल की स्लाइड होगी. ठीक है, हमें तीनों फीचर्स दिख गए. जो मसल फाइबर्स हैं दीज आर स्पिंडल शेप्ड एंड दे आर वेरी अप्रोक्सीमेट टू ईच अदर. सेकेंड, न्यूक्लियस, फ्लैट न्यूक्लियस इन द मिडल ऑफ द सेल. Then third, no striations. So this is suggestive of smooth muscle. Okay. Now this is the section of cardiac muscle in 4x magnification. Here again we can see in 4x की कोई मसल की स्लाइड है. ठीक है, अभी हमें बहुत कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है मसल का. ये पूरी हमें मसल दिखाई दे रही है. So it means in 4x magnification you can see only that this is the slide of a मसल. ठीक है,
Now we will increase the magnification to see the characteristic features of muscle. Okay. दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन. ये आपको समझ में आ रहा है कि जो बंडल ऑफ मसल फाइबर्स हैं वो किस तरह से अरेंज्ड हैं, वो लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड हैं. ठीक है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट ऑफ मसल फाइबर्स इन 10x मैग्निफिकेशन. नाउ वी विल सी द पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस. आपको न्यूक्लियस की पोजीशन देखनी है, दैट इट इज सेंट्रली प्लेस्ड. ठीक है, हमें ब्रांचिंग भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है. तो नर्व जो मसल फाइबर्स हैं, दीज आर अरेंज्ड लॉन्गिट्यूडनली एंड वेरियस ब्रांचिंग इज प्रेजेंट. ठीक है, हमें बहुत सारी ब्रांचिंग इसमें दिखाई दे रही है. ठीक है, इसके अलावा कुछ कुछ जगह हमें न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहा है. बहुत अच्छे से न्यूक्लियस नहीं दिख रहा है इसमें, बट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एंड इट इज फ्लैट एंड इट इज सेंट्रली प्रेजेंट. ठीक है, हमें कार्डियक मसल और स्मूथ मसल थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी दिखाई देती है, बट जब आप एक बार वापस रिवाइज करेंगे तब आप उसमें जो डिफरेंस है वो आप अपने माइंड में रखिए कि क्या डिफरेंस होता है इन द व्यू ऑफ 10x मैग्निफिकेशन ऑफ कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल. ओके, नाउ वी विल शो इट्स डिटेलिंग इन द 40x मैग्निफिकेशन. Now in 40x magnification you can see this is the DFOD's picture. Here in the upper part this is the longitudinal section, this is the transverse section of cardiac muscle. In the longitudinal section you can see the muscle fibers arranged longitudinally, branching is present, nucleus is present, and around nucleus there is a perinuclear halo. ठीक है, एक वाइटिश सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस के पास में, दैट इज perinuclear halo present होता है. Here this is the binucleated muscle fiber is also present, and these are the intercalated disc. Okay, and various striations are also present. Okay, and in the transverse section you can see this is one muscle fiber, this is one muscle fiber, bundles of muscle fibers, these are again covered by perimysium, and in the muscle fibers the nucleus is centrally placed. Okay, so now in our slide we can see that this is the 40x magnification, the longitudinal arrangement of muscle fibers. You can see muscle fibers are having branching. Okay, you can see the branching of the muscle fibers. ये हमें branching दिखाई दे रही है. ठीक है, so it means it is suggestive of cardiac muscle. Second, position of nucleus. ठीक है, this is the position of nucleus and it is centrally placed. Here you can see binucleated muscle fiber, and in some there is perinuclear halo is present. ठीक है, perinuclear halo भी हमें कहीं कहीं पे दिखाई दे रहा है. Here also you can see the perinuclear halo. ठीक है, एक whitish सा structure around the nucleus that is known as perinuclear halo. Now third feature, striations. If you see very minutely then you can see the striations in this slide. ठीक है, and along with the striations what is present? Intercalated disc. Okay, you can see here this is the intercalated disc. Here you can see this is the intercalated disc, and here this is the intercalated disc. Here you can see this is the intercalated disc. So if you see minutely then you will be able to see the intercalated disc. ठीक है, and now what is intercalated disc? ये हम theory lecture में पढ़ चुके हैं. That is having transverse component, it is having longitudinal component, it is a staircase type of pattern, and what are the gap junctions present in it? There are desmosomes, there are fascia adherents present in it. So these are the characteristic features of cardiac muscle. Okay, now I think you will be able to describe and identify the characteristic features of skeletal, स्मूथ एंड कार्डियक मसल. अगर हम आपको एग्जाम्स में स्लाइड देते हैं तो नाउ यू कैन आइडेंटिफाई 4x में हमें स्लाइड आइडेंटिफाई करनी है, दैट इज द स्लाइड ऑफ मसल. ठीक है, 10x मैग्निफिकेशन में हमें थोड़े बहुत फीचर्स दिखाई देंगे. मेनली हमें 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखने हैं. मसल फाइबर्स की डायरेक्शन, मसल फाइबर्स का अरेंजमेंट, सेकेंड न्यूक्लियस, shape of nucleus, arrangement of nucleus, and thirdly are the striations. Okay, so these 3 features you have to remember of each and every slide. Okay, thank you.